we saw what is displacement current. हमारा जो this is what is this? This is Ampere's law. And we saw it modified. And modified law क्या था? That is B real mu 0 IC plus ID, where IC was conduction current and ID was displacement current. Correct? And ultimately, we can write this formula as IC plus epsilon 0 d phi e 1. So this was our modified Ampere's formula. And here IC was equal to ID. This is what we have seen. फिर दूसरा इन दोनों के बारे में there are certain points. IC and ID, they are individually this one. But in a closed circuit, they are continuous. जैसे कि हम लोगों ने कैपेसिटर में देखा था, here your IC is there, and inside this is your ID. So in a closed circuit, they are like they exhibit the property of continuity of current. दूसरा इसकी प्रॉपर्टी हो गई IC is basically equal to ID. ठीक है ना? When two are present at different location in a circuit. जैसे कि इस केस में बाहर कंडक्शन करंट है और कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में ID है. Both are locations are different, but both are equal. Correct? जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसका सोर्स क्या है? What is the source? Displacement current basically arises due to rate change of electric class. Or electric field. Correct? Now, जो तुम्हारे IC है and ID, they both are source of magnetic field.
Understood? Yesterday, we discussed all these things, correct? Then we saw Maxwell's equations. मैक्सवेल इक्वेशन में हम लोग 4 इक्वेशन जो है ना वो देखी थी हम लोगों ने। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो गॉस लॉ है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हमारा क्या था? दिस इज सेकंड इक्वेशन, करेक्ट? देन Faraday's law of electromagnetic induction, यानी line integral of electric field along a closed path is equal to time rate of change of magnetic flux through the surface bounded by the closed path. So this is for third equation of Maxwell. And of course, fourth equation आपको क्या थी? Ampere's circular law, and that too in this modified form. Correct? So, यानी closed your line integral of magnetic field along a closed path is equal to mu zero times the total current, that is sum of conduction and displacement current passing through the surface bounded by the closed path. Correct? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। Now, ये जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल है, he gave the idea of electromagnetic waves, whereas जो Hertz, he experimentally produced electromagnetic wave. Correct? Now, actually, आपने देखा होगा when जो static charge है, this gives rise to electric field, and when charge moves with constant speed, then it gives rise to magnetic field. When charge accelerates, it gives rise to electromagnetic waves. So basically, electromagnetic, according to कहना Maxwell, accelerated charge produces a time varying magnetic field. क्या होता है? Accelerated charge produces time varying magnetic field. And आपको पता है changing magnetic field produces electric field. Correct?
Now these two fields, when they are mutually perpendicular, if they are mutually perpendicular to each other, then what happens? आप जो magnetic field है, it will give rise to electric field, and electric field है, it will give rise to magnetic field. यानी कि when these two fields are changing and they are mutually perpendicular to each other, then they become source of each other, and they both can actually constitute together electromagnetic. Two perpendicular electric field and magnetic field, when they can actually move in the space, then that is called can actually electromagnetic wave. जो हर्ट्ज में क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? एटीन 1887 में he demonstrated electromagnetic wave through spark oscillator. By using spark oscillator, he produced the electromagnetic waves and successfully detected the same current. इसलिए जो electromagnetic wave experimentally produced करे, उसका जो wavelength था, it was 6 meter, and that's why he was acknowledged करना चाहिए कि जो SI unit of frequency है, वो इसके नाम पे. इसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो जगदीश चंद्र बोस है अपने, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करी एक्सपेरिमेंटली ऑफ ए वेवलेंथ in the range of 5 mm to 25. Correct? और इसके बाद मार्कोनी ने प्रोड्यूस किया रेडियो वेव्स, जो कि हम लोग टीवी एंटीना वगैरह जो है ना कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं. तो जो है जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स आर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्लेन वेव्स की जो इक्वेशंस है, वो हमारे क्या थे? E0 sin ओमेगा t minus x upon c and v x. And yesterday we showed कि भाई these equations जो है ना, they comply with the Maxwell's equations, provided c must be equal to E0 upon E0 and c is equal to 1 upon. Correct?
And experimentally in vacuum, the speed of light was measured and it was found correct using U0 and epsilon 0 constant. तो आपका ये जो है ना, नाउ नेक्स्ट आपका है एनर्जी डेंसिटी। ये तो आपका था जो हम लोगों ने कल पढ़ा। नाउ वी विल गो फर्दर कि आखिर व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। हमारे जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी इक्वेशंस क्या है? यही दो इक्वेशंस है, ठीक है ना। नाउ इन अ स्मॉल वॉल्यूम dV इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? दैट इज 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर dV। ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है ना ये चीज, ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ पहले है ना, है ना। और उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है दैट इज ये डेंसिटी वी नो। तो टोटल हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो गई? टोटल एनर्जी जो है वो आपकी हो जाएगी U इज इक्वल टू UE प्लस UB एंड दिस विल बी योर बेसिकली 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर dV प्लस 1/2 म्यू 0 D स्क्वायर dV। और एनर्जी डेंसिटी की बात करें ना हम, तो दैट इज U, वो क्या हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू 0 D स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी बेसिकली पर यूनिट वाले, करेक्ट। टोटल एनर्जी पर यूनिट वाले बेसिकली एनर्जी डेंसिटी है। अब इसमें E और B की वैल्यू रख दो आप। E क्या है हमारा? E है E0 साइन यही हो जाएगा, करेक्ट। नाउ इफ यू टेक एवरेज, तो साइन स्क्वायर का एवरेज जो है ना हाफ होता है या नहीं होता? साइन स्क्वायर का एवरेज जो है वो क्या होता है? हाफ होता है। हम्म? तो ये क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 E जो इसका एम्पलीट्यूड है प्लस, तो एवरेज वैल्यू अगर हम ले इसकी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारी ये जो एनर्जी डेंसिटी है नाउ
हमें पता है कि E0 इज इक्वल टू C V0। दूसरा हमें ये भी पता है D0 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1/c²। दो इन दोनों की इन दोनों को अगर आप रखोगे तो आप ये भी इसको कर सकते हो कि जो U एवरेज है दैट विल बी 1/4 एप्सिलॉन 0 E0² प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 E0 और 1/2 एप्सिलॉन 0 E0²। और इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/4 V0 V0² प्लस 1/4 V0 V0² इक्वल टू हाफ V0 V0²। करेक्ट। तो आपके जो एवरेज वैल्यू है, चाहे दिस एंड दिस दे आर बोथ इक्वल कंडीशन। तो ये है आपका एनर्जी, बेसिकली एनर्जी ऑफ एवरेज एनर्जी विच कैरीज करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सपोज इंटेंसिटी होती क्या है? इंटेंसिटी की डेफिनेशन जो है वो ये है कि एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम थ्रू एरिया, मतलब एरिया क्या है? टू या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यही एनर्जी नहीं होती। एनर्जी, सॉरी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एंड एरिया क्या है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो सपोज आप इसको मान लो कि ये आपका जो है ना, ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो आपका और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या होती है? सी होती है। तो सपोज डेल्टा टी टाइम में ये कितना चलेगा? डेल्टा टी टाइम में ये इतना डिस्टेंस एनर्जी चलेगी। एंड इसका एरिया जो है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इस ए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आपका यू क्या हो जाएगा? यू टोटल एनर्जी इज एनर्जी डेंसिटी इनटू सी डेल्टा टी इनटू ए डीवी। डीवी क्या है? डीवी यही हो जाएगा सी डेल्टा टी इनटू ए। तो हमारा टोटल एनर्जी पासिंग थ्रू दिस एरिया पर ना, ये हो गई आपकी। तो इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज यू अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? यू एनर्जी डेंसिटी एवरेज इनटू सी। यही हो जाएगा, है ना। तो इसको हम अगर करना चाहिए उसमें देखें, यू एवरेज हमने निकाला हुआ है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E0²। दिस इज द बेसिकली इंटेंसिटी करना चाहिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों? अब चूंकि ये वेव है
So it will have a momentum also. They carries linear momentum. Linear momentum suppose है P. ठीक है? So linear momentum. What is linear momentum? P is equal to basically U by C. यानी the total energy divided by C gives you the linear momentum of the electromagnetic wave. Now, a wave है. If it is falling on some surface, right, then अगर कहना चाहिए if wave is, yeah, you can say if the wave is completely absorbed, the wave is falling onto some surface and it is completely absorbed, then linear momentum is given by u upon. Now, if the wave is completely, totally, or you can say totally reflected, अगर रिफ्लेक्टेड होगी तो क्या होगा? P will be equal to 2u upon C. क्यों? क्योंकि एक इंसिडेंट वेव होगी, उसके बाद रिफ्लेक्टेड वेव होगी, एक P होगी और दूसरी माइनस P होगी, दोनों जुड़ जाएंगे, होता है ना? क्यों? तो अगर रिफ्लेक्ट होगी तो नेचुरली आपका जो मोमेंटम है वो आपका ज्यादा होगा. ठीक है? मीन्स यानी कि इट फॉलोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इसमें मोमेंटम है देन दे कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द. फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट. क्यों भाई? है ना? ना एक वो भी आता है जैसे तुम्हारा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो एक तो प्रॉपर्टी वही है कि दे कैरी करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है? एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. दूसरा आप ये लिख सकते हो दे आर प्रोड्यूस बाय accelerated charge. Then बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम.
करेक्ट. तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम. तो वैक्यूम में भी तरह से दैट्स व्हाई लाइट जो है ना, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. वैक्यूम में भी मूव कर सकती है बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है ना. नाउ दूसरा, इन फ्री स्पेस it travels with the speed of that is equal to approximately मतलब this is the speed of light. करेक्ट. नाउ अगर कहना चाहिए आपका ये म्यू जीरो एंड एप्सिलॉन जीरो दे आर permittivity and permeability of the free space. करेक्ट. म्यू जीरो हमारा क्या है, परमेबिलिटी, और एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अगर आपका मटेरियल मीडियम उसका परमेबिलिटी म्यू है और ये एप्सिलॉन है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगी आपकी 1/रूट म्यू अपॉन जो भी मतलब मीडियम की परमिटिविटी और करना चाहिए वो हो जाएगी. ठीक है. म्यू एंड एप्सिलॉन जीरो क्या है, म्यू एंड एप्सिलॉन जीरो, सॉरी म्यू एंड एप्सिलॉन ये क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी. तो बी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. करेक्ट. हमारा जो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, वो क्या होता है, वो होता है हमारा सी अपॉन वी. डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है. और ये वी क्या है, वी इज द वेलोसिटी इन द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम. इसी मीडियम का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा तुम्हें अगर निकालना है, करेक्ट. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी, एंड दिस वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इनटू रूट म्यू. तो यानी कि डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम भी आप निकाल सकते हो ऐसे. ठीक है. और इसको अगर और थोड़ा सा वो करना है तो हमारा म्यू आर क्या होता है, म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू अपॉन म्यू जीरो. इसी तरीके से एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, एंड दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो. तो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अगर रिलेटिव आपको दिया हुआ है, एब्सोल्यूट ना देके अगर रिलेटिव दिया हुआ है, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखो.
अभी आप ऑप्टिक्स में ये पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, काफी डिटेल में। ठीक है। और क्या इसकी प्रॉपर्टी में आ सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। करेक्ट। दूसरा, ये जो ये जो आपका वो है, कहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ये भी, इसको ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट वेक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। बाकी और क्या था, ये भी पढ़ा था हमने, बताते हैं इसको। एनर्जी, टोटल एनर्जी is equally divided in electric and magnetic field vector। करेक्ट। तो यानी कि यू ई इज इक्वल टू यू डी, यानी कि हाफ एप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जीरो जीरो। करेक्ट। नाउ एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, कहना चाहिए पॉलीएंट्रिक। What is this H? That is the horizontal component of the, कहना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ ये जो आपका है, व्हाट इज एस, दिस इज बेसिकली क्या है कि एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये जो एस है। करेक्ट। बाकी वो तो तुम्हें पता ही, मोमेंटम हमारा क्या होता है, डब्ल्यू होता है सी, एंड ये तुम्हारा किसमें है, व्हेन टोटली एब्जॉर्ब, एंड पी इज इक्वल टू 2 यू अपॉन सी व्हेन टोटली रिफ्लेक्टेड। और इंटेंसिटी आपको पता ही है, इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, हाफ
एप्सिलॉन 0 U0 स्क्वायर, और इसको ये भी कर सकते हो हाफ म्यू 0 V0 स्क्वायर। करेक्ट। नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाँ, तो इसमें इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बसा लो इसमें, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका विजिबल रेंज आ जाता है, इससे बड़ी स्मॉल रेंज। इसमें एक तरफ फ्रिक्वेंसी है, दूसरी तरफ वेवलेंथ है, नेचुरली दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसलिए एक तरफ से फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। तो यानी कि इधर देखो रेडियो वेव्स, इनकी फ्रिक्वेंसी जो है ना वो बहुत कम है, बट इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। तो वेवलेंथ यहाँ पे हायर है, एंड फ्रिक्वेंसी जो है ना, नाउ इफ यू गो राइट वर्ड, तो वेवलेंथ जो है ना वो डिक्रीज होती जाएगी और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। एंड एक्सट्रीम राइट पे आपकी गामा रेज आती है, दे हैव वेरी स्मॉल वेवलेंथ एंड बट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी टर्म्स। करेक्ट। तो ये देखो इधर माइक्रोवेव्स का रीजन है। ये जो हमारे यहाँ माइक्रोवेव हमारा किचन में रखा होता है, वो माइक्रोवेव से ही चलता है। इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, ये हो गया ना। अब इसमें क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इनकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी जो है ना वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई वगैरह में आ जाता है, और या आपके कहीं किसी एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा आपको जो है ना इसको याद करना पड़ सकता है। क्यों भाई, ये बताओ प्रेमिका, should I go into the details of the properties of these rays, or you can read yourself? I will read it myself. कुछ डाउट होगा तो ask you. क्योंकि क्या है, बिल्कुल टोटली ये पॉलिटिकल है, एंड एनी बुक विच यू सी, आप इनकी प्रॉपर्टीज को एक बार पढ़ डालो। जो ब्रॉड ब्रॉड पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखो। बाय व्हाट आई विल सजेस्ट इज, कहना चाहिए जो बेसिकली ये जो रेंजेस हैं, थोड़ा सा इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी ऑर्डर ऑफ कहना चाहिए दिस वेव्स, जो भी रेज हैं इनका ऑर्डर जरूर आपको आपको यू मस्ट नो कि एक्सट्रीम राइट पे जो है ना गामा रेज है, दे हैव द स्मॉलेस्ट कहना चाहिए वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में ऑर्डर लिख देंगे, और उसमें आपको करेक्ट ऑर्डर बताना पड़ेगा कि किसका फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में है या किसका वेवलेंथ डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लाइक दैट। इसमें नॉर्मल जो है ना इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा एक और भी चीज है कि थोड़ा सा यू हैव टू रिमेम्बर कि इनका ऑरिजिन क्या है। हम्म, जैसे गामा रेज है, गामा रेज जो है ना बेसिकली ये जो आपका वो है कहना चाहिए न्यूक्लियस होता है,
ये गामा रेज बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है, दैट इज द ऑरिजिन कहना चाहिए, वहां से वो रेडिएशन डेवलप होता है, मतलब सोर्स कहना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू नो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी जो है ना, वो अल्फा बीटा गामा रेज जो है ना एमिट करते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है ना, वो जो है ना आपके, उनका जो सोर्स है वो बेसिकली न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जो ये तुम्हारे एक्सरेज है, ठीक है, आपने देखा होगा एक्सरेज, एक्सरेज का एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, वो कूलिज ट्यूब, याद आ रहा है? कूलिज ट्यूब, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो कोई टारगेट होता है, उसमें हाई एटॉमिक नंबर का टारगेट होता है, और उस टारगेट को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं, ठीक है। तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय बेसिकली, कहना चाहिए, बाय बम्बार्डिंग, ठीक है, विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कहना चाहिए बम्बार्डिंग, जो आपका जो हाई एटॉमिक नंबर जो मेटलिक मेटल्स है उनको जो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो है ना, जो एक्सरेज आर प्रोड्यूस करना चाहिए। एंड एक्सरेज बेसिकली दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग होती है। अल्ट्रा वायलेट तो आपको पता ही है, वो आपके सोलर स्पेक्ट्रम, मतलब आपके सन से, सन में जो है ना बेसिकली, जो आपका मरकरी एंड आयरन, इनके इंट्रैक्शन से जो है ना ये अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस करा सके। बाकी आप एक्सपेरिमेंटली अगर इनको करो तो हाइड्रोजन और जेनॉन के इंट्रैक्शन से भी आप अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इनका मोटा मोटा जो है ना, विजिबल लाइट का तो आपको पता ही है, दे आर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड बेसिकली दे आर द रेडिएशन कहना चाहिए, है व्हेन ए हॉट, एंड बेसिकली जो हॉट बॉडीज जो है ना, दे रेडिएट द इंफ्रारेड रेज कहना चाहिए। माइक्रोवेव्स जो है ना, दे आर प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका होता है ना, आपको हमने बताया था कि माइक्रोवेव कैसे वर्क करता है। जिग जैग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उससे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है आपके, जो फूड प्रोडक्ट जिसको गर्म करना होता है, तो जो उनके उसमें अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, दे गेट्स हीटेड अप करना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस जिगजैग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दैट काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू दोस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दे गेट हीटेड अप, एंड दिस इज हाउ योर फूड इज वार्म करना चाहिए, गेट्स हीटेड अप। अगर आपके फूड प्रोडक्ट्स में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं हो, तो माइक्रोवेव माइक्रोवेव इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट करना चाहिए। तो बेसिक चीज है कि इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, दे आर द कॉज ऑफ हीटिंग द फूड कहना चाहिए। तो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव हम, हमारा कम्युनिकेशन वगैरह में भी काफी यूज होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बेसिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियो वेव्स जो है ना, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड सिमिलरली कहना चाहिए बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहना चाहिए। और इनका जो बेसिकली जो यूजेस है ब्रॉडकास्टिंग और टीवी ट्रांसमिशन वगैरह में, you know, तो आपको क्या करना है, सारे जो रेज है इनकी बेसिकली प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी आपको याद करके, इनके स्मॉल स्मॉल नोट्स बना लो या स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स बना लो, जो आपको जो है ना वो याद रखना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ यू मस्ट नो कि आखिर क्या है क्या नहीं। दूसरा, इसके बाद आपका जो कंक्लूडिंग वो है, रेडिएशन, थोड़ा सा
रेडिएशन इन एटमॉस्फेयर, मतलब रेडिएशन थोड़ा सा एक सिंपली ओवरव्यू टाइप का, कि हमारा जो बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है, इट इज करना चाहिए अर्थ सरफेस से अराउंड 300। नाउ एज यू मूव अपवर्ड करना चाहिए डिफरेंट लेयर्स, आपको आपने ये सब पढ़ा होगा बेसिकली, ठीक है ना। तो जो ये हमारा जो क्लाउड्स वगैरह जो है ना, अगर इसको हम ऐसे बनाएं, तो ये जो क्लाउड्स वगैरह जो है ना, ये तुम्हारा बेसिकली 12 किलोमीटर की रेंज है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, है ना। इसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द करना चाहिए जो भी है आपका क्लाउड्स, मतलब दे आर रेस्ट्रिक्टेड करना। डेंसिटी जो है, आप सोचो कि अगर डेंसिटी आपकी दो अर्थ सरफेस पे है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2/10 होगा। उसके बाद 12 किलोमीटर से अप टू 50 किलोमीटर, दिस दिस एरिया इसका स्टेटस, ठीक है ना। ना इसके जो अपर पार्ट है स्टेटस स्क्वायर का, इसमें आपकी होती है ओजोन लेयर। डेंसिटी यहाँ पे आके आपकी समझ लो, इसके अपर पार्ट पे डेंसिटी जो है ना, रो बाई, इट इज अबाउट रो इंटू 10⁻³ या रो बाई 1000। करेक्ट। इसके बाद क्या होता है, 50 किलोमीटर से ऊपर जाओगे अप टू 80 किलोमीटर, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड बिजनेस स्क्वायर, और इसके ऊपर हम लोग बोलते हैं आइडल स्क्वायर। तो ऐसा कोई बहुत ही शार्प, देयर इज नो शार्प करना चाहिए डिस्टिंक्शन बिटवीन द बाउंड्रीज, क्योंकि दीज बाउंड्रीज ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। नाउ मेन सोर्स ऑफ जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मेन सोर्स जो है ना, वो कौन है, वो सन। नाउ दिस सन sends electromagnetic waves of different wavelengths towards the earth connection. Now the major part of the electromagnetic waves, it is absorbed by the atmosphere. हाँ, तो आपका सन जो कुछ भी भेज रहा है, तो मेजर पार्ट ऑफ इट करना चाहिए, इट इज अब्सॉर्ब बाय द एटमोस्फियर, ठीक है। बट जो विजिबल लाइट है, इट इज वीकली एब्सॉर्ब, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो तुम्हारा इंफ्रारेड रेडिएशन है, मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन एब्सॉर्ब बाय द एटमोस्फियर, इसीलिए हमारा जो एटमोस्फियर है वो वार्म रहता है। वार्म मतलब बिकॉज इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है, इट प्रोड्यूसेस हीट करंट, तो इट इज अब्सॉर्ब बाय द एटमोस्फियर एंड एटमोस्फियर गेट्स हीटेड अप, ठीक है। दूसरा, सन से हमारा ये भी निकलता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अब इट इज एब्सॉर्ब बाय द
ओजोन लेयर, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है ना, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन जो है ना, है इट अब्जॉर्ब करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट प्रोटेक्ट्स करना चाहिए और फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स करना चाहिए, ठीक है। ओजोन लेयर करती क्या है? ओजोन लेयर जो है ना, इट कन्वर्ट्स यूवी रेज इनटू इंफ्रारेड, and naturally due to this infrared rays which are absorbed by the atmosphere gets heated after, ठीक है। तो बट यूवी रेज आर वेरी हार्मफुल करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि ओजोन लेयर जो है ना डिप्लीट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जो आगे क्या होता है पता नहीं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ओवरव्यू ऑफ तरह से एटमोस्फियर एंड इट्स रेडिएशन जो है ना, ये है दिस एंड्स आवर बेसिकली चैप्टर। इट वाज अ वेरी स्मॉल चैप्टर। कल हम लोग जो करेंगे इसके क्वेश्चन करेंगे। Okay. कल हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे होते, तो कल परसों 2 दिन हम लोग करके फ्राइडे और सैटरडे, यस, आवर दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, देन फ्रॉम मंडे वी कैन स्टार्ट ऑप्टिक्स करेंगे, ठीक है। Okay. ये चैप्टर तो समझ में आ गया ना थोड़ा सा, Hmm. ठीक है। तो अभी चलो कल क्वेश्चन करेंगे, तो देन Okay. अरे ठीक है, ओके,